and there is sexual dimorphism. And male is smaller than female. This gynecophoric canal is to hold the female during copulation. And eggs are non-operculated. All trematodes have operculated egg, but this one is the exception. And another thing is intestinal ceca. Intestinal ceca is fused posteriorly in case of female, and in case of male, it is fused posteriorly but again bifurcates. Radia and metacercaria are absent. तो जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, जैसे अभी पिछले 2 सालों से जो क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड टू लाइफ साइकिल, तो इन दैट दे हैव नॉट आस्क्ड लाइक दैट कि इन सिस्टोसोमा रेडिया इज एब्सेंट और मेटासर्केरिया इज एब्सेंट और विच स्टेज इज प्रेजेंट। वो पूरी लाइफ साइकिल ही बना देते, जैसे पिछले सिंबल दे रहा है पिछले सालों, जैसे एग के बाद मीरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, लाइक दैट। तो वो पूरा लाइफ साइकिल ही बना देते हैं और दे आस्क कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट लाइफ साइकिल है, तो जिसमें रेडिया नहीं रहे और मेटासर्केरिया नहीं रहे ऑप्शन में, वो सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल होगा। वो एक चीज नहीं पूछ रहे हैं कि इन सिस्टोसोमा रेडिया इज प्रेजेंट और नॉट और मेटासर्केरिया इज प्रेजेंट और नॉट। उसके बाद इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो फर्कोसर्कस सर्केरिया है। स्किन पेनेट्रेशन से एंटर होता है बॉडी में। उसके बाद अपन इसकी लोकेशन अगर देखें तो सिस्टोसोमा नेजेल, जैसे कि नाम में ही है, वो नेजल म्यूकोसा में होगा, वेन ऑफ नेजल म्यूकोसा। फिर सिस्टोसोमा स्पिंडेल, इंडिकम और इनकॉग्निटम, ये होंगे मेसेंट्रिक वेन में। और सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, मैंने पहले भी बताया कि ये यूरिन में इसका एग मिलता है, तो इट इज प्रेजेंट इन पोस्ट मेसेंट्रिक आर्टरीज and eggs are laid in bladder, ureter or in urethra. Mainly it is mainly present in man. It is not a main parasite of animals. It is mainly present in man. अब सिस्टोसोमा नेजेल से जो डिसीज होती है उसको नेजल ग्रैनुलोमा बोलते हैं। It is also known as Snowring disease. It is common in ruminants, and in ruminants it is common in buffalo. इसमें जो चीज याद रखनी है कि the granuloma is like cauliflower like growth.
और ये मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन में मिलता है, तो these three species will cause hepatointestinal cystosomasis. अब इसका एग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ओटी में आता भी है। जो सिस्टोसोमा नेजेल का एग होता है, इट इज लाइक बूमेरैंग, लाइक नेपोलियन हैट, ऐसा कुछ रहता है। Cystosoma spindle, as its name suggests, कि it has a spindle shaped egg. Indicum has oval egg and have terminal spine. Incognitum has also an oval egg, but it has subterminal spine. Another important thing is diagnosis. You have to just remember the names of the tests which are used in diagnosis of cystosoma. First one is Sarkarial Hullen reaction test. In short form, it is also called as CHR. Second one is Miracidium immobilization test. Third one is circumoval precipitation test. Fourth is bentonite flocculation test. And for cystosoma, drug of choice is praziquantel. This is also important. Another disease is Sarkarial dermatitis. It is mainly a disease of man. It has various synonyms like swimmer's itch, hunter's itch, clam digger's itch, paddy itch. It is caused by Sarkaria of non-human origin. It is a zoonotic disease. And this Sarkaria penetrates through skin, then this disease is caused. And Schistosoma hematobium, as it is present in its egg is present in ureter bladder, so it causes urinary schistosomiasis.
Next one is Paragonimus. In this, only one species, that is Paragonimus wastermani. Wastermani. It is also a zoonotic disease. Paragonimus cercaria is Microcircus. Its drug of choice is buthional. It causes, ये आपको याद रखना है, it causes chronic eosinophilic granulomatous pneumonia. अब जैसे ये है तो अब ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, तो लंग्स में प्रेजेंट है तो अब लंग्स में क्या क्या चीजें करेगा, जैसे कि निमोनिया करेगा, प्लूराइटिस करेगा, पेरिटोनाइटिस करेगा, ये सब चीजें वो, बस आप ये याद रखो कि पैरागोनिमस लंग्स में प्रेजेंट होता है। बाकी इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस निमोनिया का, वो है क्रॉनिक इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटस निमोनिया, ये याद रखना है। अनदर वन इज प्रोस्थोगोनिमस. Prosthogonimous ovatus. It is also known as oviductal fluke of poultry. It is also the most pathogenic trematode of poultry. As I have already told you that in its life cycle radii is absent. And one peculiar clinical sign is retroperistaltic movement of oviduct. And its drug of choice is praziquantel. And it is present in oviduct, then क्या क्या हो सकता है कि एग एग से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जैसे सेल लेस एग हो सकता है, सेल वीक हो सकती है, ब्रोकन एग हो सकता है, ये सब चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी कोई अगर डिसऑर्डर मिले ऑप्शन में वो सब करेक्ट, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बस याद रखना है कि रिट्रोपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट रेडिया इज एब्सेंट, मोस्ट पैथोजेनिक trematode of poultry, and it is known as oviductal fluke of poultry. Drug of choice is praziquantel. Another one is echinostome. Echinostome revolutum. It is present in cecum and rectum of domestic fowl, duck, pigeon. It is also used as a biological control of infect intermediate host of cystosome. And most peculiar thing in this is that it has head collar which is having
37 स्पाइंस। हेड कॉलर मीन्स कि जैसे ये इसका जो ओरल सकर होता है, जो ओरल सकर के चारों ओर जो स्पाइंस होते हैं वो 37 होते हैं। तो ये कॉलर टाइप दिखता है, स्पाइन पूरा सराउंड करते हैं उसके ओरल सकर को। ये ओरल सकर है उसका, तो ओरल सकर के चारों ओर स्पाइन सराउंडेड रहते हैं, तो वो कॉलर की तरह दिखता है। तो उसमें आपको हेड कॉलर याद रखना है। 37 स्पाइंस ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, पर हेड कॉलर याद रखना है। गाइनोस्टोम हैज हेड कॉलर। एक चीज और ओटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नेमाटोड्स का पार्ट तो नहीं है, वो सिस्टोड का पार्ट है, पर आप उसको बस याद रखो कि ये जो पार यूट्राइन ऑर्गन्स होते हैं स्टिलेशिया एंड एवेटिलेना में मिलते हैं। पार यूट्राइन ऑर्गन कुछ नहीं होते हैं, वो यूट्रस के जस्ट डायलेशन होते हैं, यूट्रल डायलेशंस। उसके बाद जो लास्ट है ट्रिमाटोड में है वो पैराएम्फिस्टोम। तो पैराएम्फिस्टोम, एम्फिस्टोम अडल्ट डज नॉट कॉजेस एनी डिसीजेस, एनी डिसीज। In amphistome, the main disease is caused by larva of amphistome. Larva cause damage during migration. Immature, the disease caused by the para-amphistome is known as immature para-amphistomosis because it is not caused by the adult parasites. This is also known as P2 killer. In this para-amphistome, first one is para-amphistomum cervi, which is also known as a conical fluke. It is present in, first of all, para-amphistome is known as a rumen fluke. अब बस इसके बाद इसमें जितने भी स्पीसीज आएंगी उनके लोकेशन याद रखना। आप सारे के तो याद नहीं रह पाएंगे, पर ह्यूमन फ्लूक है तो ह्यूमन में, रेटिकुलम में, इन्हीं दो में से किसी एक में रहेगा। सीकम में हो सकता है, कॉलोन में हो सकता है, मतलब इंटेस्टाइन में रहेगा या तो स्टमक में रहेगा। तो ह्यूमन फ्लूक है वो। और इसको पैरा एम्फिस्टोमम सर्वाई इज आल्सो नोन एज अ कॉनिकल फ्लूक। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड रेटिकुलम of cattle, buffalo, sheep, and goat. Second one is gastrothelix. It is a paused amphistome. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोथेलिक्स इज अ पाउज्ड एम्फिस्टोम। इस पाउज्ड एम्फिस्टोम में तीन आते हैं। एक तो गैस्ट्रोथेलिक्स है, एक फिशियोडेरस है। इसकी स्पेलिंग देख लेना आप लोग, फिशियोडेरस इलोंगेटस और एक फिशियोडेरस कोबोल्डाई। ये तीनों ही पाउज्ड एम्फिस्टोम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि
पाउच्ड एम्फिस्टोम इसमें से कौन है? अगर ये तीन रहते हैं और चौथा ऑल रहता है तो ऑल है वो। और अगर ये नहीं रहता, ये दोनों रहते हैं, तीसरा कुछ और चौथा ऑल रहता है एम्फिस्टोम में, तो जो सबसे करेक्ट आंसर है ना, वो पाउच्ड एम्फिस्टोम का गैस्ट्रोथेलिक्स ही है। अगर एक लगाना है तो गैस्ट्रोथेलिक्स ही वो पाउच्ड एम्फिस्टोम है, अगर एक सेलेक्ट करना है तो। और ऑल है तो तीनों ही पाउच्ड है। तो गैस्ट्रोथेलिक्स इज नोन एज पाउच्ड एम्फिस्टोम। इसमें स्पीसीज है गैस्ट्रोथेलिक्स क्रूमेनिफर। इट इज फाउंड इन कैटल, बफलो, शीप, गोट, सेम rumen plus reticulum. थर्ड वन इज कोटाइलोफोरॉन। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो है कि इट हैज 3 सकर्स। कोटाइलोफोरॉन से 3 सकर्स। और गैस्ट्रोथेलिक्स में एक चीज और है कि इसमें क्रॉसिंग ऑफ यूट्रस होता है। फोर्थ वन इज गैस्ट्रोडिस्कस। गैस्ट्रोडिस्कस में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट हैज अ डायगोनल टेस्टिस। और इसी में एक अगली स्पीसीज है, वो है गैस्ट्रोडिस्कोइडियस। डिस्कोइडिस। ये कॉइडस है या डिस्कस है? तो इसमें जो टेस्टिस होती है वो टेंडेम होती है। टेंडेम का मतलब एक के ऊपर एक टेस्टिस होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये गैस्ट्रोडिस्कस हैव डायगोनल टेस्टिस एंड गैस्ट्रोडिस्कोइडस हैव टेंडेम टेस्टिस। एक के ऊपर एक टेस्टिस है तो वो है गैस्ट्रोडिस्कोइडस, और डायगोनल टेस्टिस है तो वो है गैस्ट्रोडिस्कस। गैस्ट्रोडिस्कस में स्पीसीज जो है वो गैस्ट्रोडिस्कस सिकंडस है। वो हॉर्स के, इट इज फाउंड इन हॉर्स, हॉर्स कोलोन, हॉर्स एंड एलिफेंट। गैस्ट्रोडिस्कोइडस में गैस्ट्रोडिस्कोइडस होमिनिस, सीकम, कोलोन ऑफ पिग। फिर इसमें जो नेक्स्ट स्पीसीज है वो है स्यूडोडिस्कस। स्यूडोडिस्कस हैज हॉरिजॉन्टल टेस्टिस। तो गैस्ट्रोडिस्कस में थी डायगोनल टेस्टिस, गैस्ट्रोडिस्कोइडस में थी टेंडम टेस्टिस, एंड स्यूडोडिस्कस में हॉरिजॉन्टल टेस्टिस। इसकी स्पीसीज जो है वो स्यूडोडिस्कस कॉलिन्सी। इट इज फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन एंड एलिफेंट। अब पैराम्फिस्टोम में एक सेकंड अभी नहीं, अनदर स्पीसीज इज गाइगेंटो कोटाइल, गाइगेंटो कोटाइल एक्सप्लेनेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कॉजेस बिलियरी एम्फिस्टोमोसिस, मेनली इन बफेलो। अब पैराम्फिस्टोम में जो मोर्टेलिटी है, इट इज अराउंड 90% इन शीप, and in cattle and buffalo it is around 40 to 60%, because cattle and buffalo develops immunity against this amphistome infection. This you have to remember that the mortality in sheep is around 90% in case of paramphistomes. Then again the same thing, इसका क्लिनिकल साइन क्या होगा? ह्यूमन या इंटेस्टाइन में इफेक्ट कर रहा है तो प्रोटीन कम होगा सबसे पहले, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड लॉस भी होगा, एनीमिया होगा, प्रोटीन कम होगा तो बॉटल जॉ कंडीशन होगी।
लीकी गट हो जाएगी, गट लीक करेगी तो डायरिया होगा। ये सारी चीजें जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन और ह्यूमन रेटिकुलम से रिलेटेड है वो सारी चीजें होंगी। तो ये ट्रिमाटोड सारे हो गए। एक चीज एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा ओटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एग में डिफरेंस। एक तो फेसियोला में और एम्फिस्टोम में। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पिछले कुछ पेपरों में एक दो क्वेश्चन है इससे। जैसे जो फेसियोला का एग होता है वो गोल्डन, इट इज गोल्डन येलो, एंड एम्फिस्टोम एग इज ट्रांसपेरेंट एंड इट stains blue by methylene blue, or it does not take methylene blue stain, and it has a distinct operculum, more distinct. Embryonated mass is, ये सबसे important point है। embryonated mass is hexagonal in case of fasciola egg। से एग है तो उस fasciola के एग में उसको जो embryonated mass है वो उसके अंदर हेक्सागोनल, एम्ब्रियो का जो मास है वो हेक्सागोनल होगा। लेकिन इस केस में एम्ब्रियो का जो मास है वो सर्कुलर सर्कुलर होगा एम्फिस्टोम के एग में। इसमें से लास्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कलर गोल्डन येलो और ट्रांसपेरेंट ये एक बार पूछ चुका है। So this is all for trematodes. If anybody has any doubt then he or she may ask। बताना तो सिस्टोड भी था पर बहुत लेट हो गया, तो सिस्टोड कल पढ़ाऊंगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता हो।